કોન્સ્ટિપેશન, કોલાઇટિસ, ઇન્ડાઇજેશન, પાયસ, ફિસર, ફિસ્ટ્યુલા અને એનાથી આખું શરીર નબળું પડી જાય, એના માટે આપણે શું કરવાનું? તો આજે સૌથી પહેલાં આપણે શરૂઆત કરીએ પાકશાસ્ત્રથી. આ તો છે છોટી દૂધી, આ છે બડી દૂધી. આ છોટી દૂધી અને બડી દૂધી આ પેટની અપ્રતિમ ઔષધ છે. અને પછી આ બંદર પીછી કહેવાય અને આ સંજીવની કહેવામાં આવે. એ કોલાઇટિસ માટે, જેને બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું એના માટે રામબાણ છે. આમ તો દુર્વા ઘાસ પણ કામ કરે. અને આ છે અતિબલા. એનાથી તો કેવું મોટું કોન્સ્ટિપેશન હોય, ઇન્ડાઇજેશન હોય, પેટની બધી જ બીમારીઓને આ બળા કાઢી નાખે. એનું નામ જ અતિબળા છે. અને ભૂમિ આંવલા, પુનર્નવા, મકોઈ એ પણ રામબાણ ઔષધિ છે. ભૂમિ આંવલા, પુનર્નવા, મકોઈ, વીટગ્રાસ અને એલોવેરા, આ 5 ઔષધિનો જ્યુસ પી લો તો પેટની કદાચ કોઈ બીમારી થાય જ નહીં. અને આ છે અતિબલા. એ તો અતિબલા તો પરમ ઔષધ છે એ પાયલ્સ માટે. અને આ ગુલાબની પંખડીઓ તમે જુઓ છો, આ ગુલાબની પંખડીઓ લઈને અને ગુલાબની પંખડીઓને મધમાં નાખી દેવાની. આ ગુલાબની પંખડીઓ આમ ફ્રેશ પંખડીઓ લઈ લેવાની અને આને આમ અને આમાં પછી મધ નાખી દો અને એનાથી આ ફ્રેશ ગુલકંદ તૈયાર થઈ જાય. આ પણ પરમ ઔષધ છે. એ આમ જ એને મધમાં મેળવીને અને આમ જ ખાઈ લો. લોકો આમ ઘણા બધા આમ કહે કે એના આમાં કોઈ સુપર સાયન્સ નહીં. હા, આ તો ફક્ત આવી રીતે એને ખાંડીને સરસ રીતે અને અહીંયા જ્યુસ બનાવી લો. અને આ એનાથી ડાયજેશન પણ સારું રહે. આટલું જ ખાઈ લે. આ 1 ચમચી. આ છોકરી અહીંયા આવો તો ઊભી રહે, इधर आओ. ये लड़की, इसको भी भयंकर पेट की बीमारियां थी. है ना? ये खा लो, तुम ही खा लो. तुम्हारे को प्रसाद दे दिया, ला इसी में रख देना. तो એના પહેલાં પેટ ખરાબ હતું, પણ પછી કિડનીમાં સૂજ આવી ગયા અને મરણાસન્ન હતી. એના છોકરાના પછી એના આંતરડા વીક હતા, છોકરાના પણ આંતરડા વીક થઈ ગયા હતા, એ પણ સારા થઈ ગયા. પછી આ જ્યુસ, આ જ્યુસમાં આ આંવળા, દાડમ, ચુકંદર, ગાજર, લોકી, એટલું સરસ જ્યુસ તૈયાર થઈ જાય છે. અને એને જે પી લે, ઈદરા એ તો લડકા બેઠો એ અમે જ્યાં ગુરુકુળમાં ભણતા હતા એના પાસથી ગામડાથી આવેલા છે. એટલે તારા ડાયજેશન એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ રહેगा. રોજ पिया करिए. अनार, गाजर, चुकंदर, आंवला, इसमें एलोवेरा भी मिला सकते हो और ये लौकी आदि जितना हो, अरे जो मिले उसी को रगड़ के घोट के पी जाओ. इसमें कोई रेसिपी नहीं है. એ આ નાનકડી વસ્તુઓથી અમે પણ ગુલકંદ આપીએ છીએ, બેલકંડી આપીએ છીએ, બધા જ આ બધું કરીએ છીએ. પણ એના કરતાં તમે ઘરે કરીને પીઓ તો તમારું ડાયજેશન એકદમ હાવું સારું રહે કે તમને કોઈક દિવસે કોઈ વૈદ્યને પાસે, ડૉક્ટરના પાસે, હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂરત નહીં પડે. આ બધા એવા જ છે. આ બધું આ પોતપોતાની પ્રોબ્લેમ સારા કરીને અહીંયા બેસેલા છે. એને પણ બધાને આપણે જાણીએ. એના આસનો તો છે, જેને બહુ જ કોન્स्टिपेशन હોય तो चलो एक बार खड़े हो जाओ दोबारा से. ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन. मैं संगीता विजयवर्गीय भीलवाड़ा से. मुझे नाभि की प्रॉब्लम थी, मुझे बाबा नाभि दिखती थी. आपके योग और आपके आसन ये करके मैंने अपने पेट से नाभि पीछोटी खिसकी जाए ना, ये पण मोटी प्रॉब्लम है. नाभि दिखना, धरण दिखना बहुत बड़ी समस्या. अब मेरा एल्कलाइन फास्फेट, थोड़ा लीवर में दिक्कत हो गई है. एल्कलाइन फास्फेट कम नहीं हो रहा, पीबीसी करके कुछ प्रॉब्लम हो गई है. अभी भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई बताया ना, फ्रेश भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, अतिबला, वीटग्रास, एलोवेरा, आंवला, जो तुम्हें उपलब्ध है. हाँ जी. ये रोज जूस पिया कर. अच्छा, इससे एल्कलाइन फास्फेट सही हो जाए? 100%. एलोपैथी में तो मेरे को बिल्कुल लाइलाज बीमारी बताया. लाइलाज जो होता है वही ठीक होता है. ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन. इस लड़के की भी नाभि डिगी हुई थी और इसका वजन था, क्या नाम बेटा? धीरज. वजन था इसका 80 किलो. 80 किलो. अब रह गया 55 किलो का. और स्वामी जी एलोपैथी में काफी जगह दिखाया, वो साइकोलॉजी के देख के नींद की दवाइयाँ दे रहे थे. तो पेट खराब और दिमाग की दवाई दे. इन डॉक्टरों का भी इलाज करना पड़ेगा. तेरे को क्या था बहन? अब उल्टे लेट जाओ, तेरे एक भुजंगासन करो, ऊंधा सोई जाओ.
और बाबा उल्टे जी लेट करके और तिर्यक भुजंगासन करो। कंधे के ऊपर से अपोजिट फैटी- साइड के पैर की एड़ी को देखो। हाँ। फैटी लीवर था। फैटी अब लीवर? हाँ जी। क्या नाम है? कुसुम गाजियाबाद से। अच्छा ठीक है। और मोटापा भी था, 12 किलो वजन कम किया। 12 किलो कम कर लिया है, जोरदार कम कर लिया। और एसिडिटी बहुत बनती थी पानी से भी। पानी से भी हाँ। एसिडिटी पूरी पानी। ज्वालामुखी बनी हुई। फिर कुछ खाती थी तो उल्टी करनी पड़ती थी मेरे को। अब ठीक है? अब ठीक है। चलो आशीर्वाद। हाँ। अब ये तिर्यक भुजंगासन, ये भी पेट के लिए बहुत अच्छा है। और उदराकर्षासन, बैठ करके, बैठ जाओ, बैठ करके संग प्रक्षालन में भी कराते हैं ना ये। ऐसे एक पैर को दूसरे पैर के पास, पंजे के पास लेके आओ, ऊपर वाले को नीचे दबाओ और ऐसे करो। आपको भी आ गए बाबू? शीर्षासन करो। ये बच्चों को बहुत मजा आता है। क्या बात है भाई, ताली बजा दो इसके लिए। फॉलो कर रहा है पूरा आपको। चलो, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा सलभ जी, आप तो बहुत अच्छा करते हो। और तेरे को क्या था? बाबा जी मेरे को पहले माइग्रेन था, लेकिन उसकी जब मेरा अब ट्रीटमेंट मंडूक हुआ आसन कर लो। पेट तो के लिए मेरा ऑपरेशन मंडूक हुआ, आसन, उसके साइड इफेक्ट शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। मतलब इतना प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को खाना पचता ही नहीं था। और मैं बस कभी नाभि घट जाए, कभी कुछ, नाभि का प्रॉब्लम बहुत रहा। मैं इतना परेशान हो गई, एडमिट तक हुई, ग्लूकोज चढ़े, लेकिन डॉक्टर बस नाभि को कुछ मानते ही नहीं थे। मैंने डॉक्टर की सब दवाएं फेंक कर बाबा को फॉलो किया। और उससे मैंने पेट सही किया। जो ऑपरेशन किया था वो मेरा फिर से वही पोजीशन, डॉक्टर ने बोला फिर से ऑपरेट करना पड़ेगा दोबारा साइनस का। अभी की बात मैं बोल रही हूँ। मैंने 7 दिन पहले अपॉइंटमेंट डॉक्टर की ली, लेकिन बाबा जी का वीडियो देखा तो उसमें बाबा जी ने कुछ टिप्स दिए थे जो मैंने फॉलो किए। 7 डेज में मेरी दोनों नोज ओपन हो गई, मेरा माइग्रेन कंट्रोल हुआ। माइग्रेन को भी था मेरे को। वही राम। तो फिर मैंने वो टिप्स औरों को बता दे, क्या क्या फॉलो किया। मैंने बाबा जी बोले थे कि जितना भी हम लोग के कफ स्टॉक हो जाता है यहाँ पे, तो आप कफ को खत्म करने के लिए उसमें रीठे का पानी, हाँ, रीठा और और काली मिर्च, काली मिर्च और एक चुटकी भर, एक चुटकी काली मिर्च और थोड़ा सा सोट, एक चुटकी, इसको 24 आवर्स आप पानी में पानी में भिगो डाल दे। फिर वो डिप से अपने नोज में डालेंगे। इतना डिस्चार्ज हुआ मेरा कफ, 1-1 ग्राम, 250 ग्राम एक बार में। और उससे मुझे अब रिलीफ है हुआ। तो ये देसी मुझे नुस्खा रिलीफ हुआ। पूरा clean हो मुझे गया। इतना विश्वास हो गया। मेरी दीदी बोलती थी पहले करो, तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन जब ऑपरेशन का इतना दर्द होने के बाद भी मुझे कुछ ठीक नहीं हुआ, तो मैं तो बाबा जी का बस बाबा जी बस आशीर्वाद। बस मैं मतलब इतना ठीक हो गई उससे कि मैंने 7 डेज की वो दवा आपकी लक्ष्मी विलास रस संजीवनी वटी, वो मैंने रेगुलर खाए। और मेघा वो सर के लिए आपने मेधावटी, वो मैंने खाए। मैं अणु तेल नहीं डाला फिर? बाबा जी अड़ू तेल तो मेरे लिए अमृत रहा। हाँ। इतना फायदा उसने हमको किया। मैं बहुत मतलब परेशान हो गई थी। मतलब ना मेरे को पढ़ने में मन होता था, ना कुछ करने का मन होता था। मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। पढ़ रही है तू? पढ़ रही हूँ बाबा जी। क्या पढ़ रही है? अभी मैं जीआरएफ नेट क्लियर करूंगी आपके साथ। ये लो, अब जो है इसने शादी के बाद भी पढ़ाई नहीं मैंने बिलीव कर रहा है। मेरे योगा का लाइब्रेरियन कोर्स कर, योगा वाला कर रखा है कोर्स। मैंने सब कुछ किया है। अब अब ठीक मैं है। जीआरएफ अब तो घर जा करके धन्यवाद। जो है पतंजलि वेलनेस सेंटर खोले, अब तो पक्की हो गई है। हैं? तो मंडूकासन करो, शशकासन करो। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये 5 आसन बैठ करके जो मर्जी आए। और जिनकी नाभि डिगी हुई, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन भी कर सकते हो। आपको क्या ठीक हुआ अम्मा? गुरुजी मैं रांची से हूँ, मेरा नाम आशा है। मैं योग शिक्षिका भी हूँ। मैं वहाँ रंजना दी के साथ क्लास लगाती हूँ और बहुत लोगों को आप लोग के सानिध्य में सिखाती हूँ। सोची कुछ अच्छा सीख के और अच्छा से सिखा पाऊँ उन लोगों को, इसलिए तो मैं तूने क्या ठीक किया? यहाँ आई। सर मेरे हस्बैंड का पैर में दर्द था, उसके वो यहाँ बहुत दिन से हैं, यहाँ आए हैं, उनका आराम मिला, बोले तुम लोग भी आ जाओ। अच्छा। बोले तो मैं पेट में कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही था और नाभि घिसता था। कभी बैठते थे तो नाभि घिस जाता था। ये तो- नाभि गिरने वाली बहुत बड़ी हाँ। समस्या है। तो हम सोचे बाबा जी से कुछ और अच्छा सिखा के लोगों को हम और अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। हम 3 चीज सीखे क्या गुरुदेव चीज? जी, रबर देती, जल देती और बस्ती, तीनों जाकर हम संडे संडे जरूर क्लास लगाएंगे। ये ला। ओके। अब बस्ती- और मेरी तरफ से मैं लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए आपके लिए चलो, ये दान भी देना चाहती है 1 लाख रुपए का। चलो आशीर्वाद है। तूने क्या क्या ठीक किया बेटा प्रिंस? डाइजेशन में कॉन्स्टिपेशन था पहले, मेरे को 15-15 मिनट लगती थी वॉशरूम में, अब 5 मिनट में काम हो जाता है, कभी कभी तो उससे भी जल्दी। मैं कहता हूँ जितना टॉयलेट में
जितना पेशाब जाने में समय लगता है उतना ही शौच जाने में समय लगना चाहिए। लघु शंका में और शौच में बराबर समय लगना चाहिए। लोग सोचते हैं यदि पेशाब रुक रुक के आए तो तुरंत इलाज कराएंगे, और टॉयलेट में आधा घंटा बैठे बैठे जोर आजमाइश करते रहेंगे। योगा से कंसंट्रेशन में भी हेल्प मिली है। पहले मैं स्केचिंग करता था, वो छूट गई थी, अभी धीरे धीरे वो भी स्टार्ट कर दी है। कंसंट्रेशन में बहुत हेल्प हुई है योगा से ना। इस एक बालक ने कितने दिन हो गए तेरे को यहाँ? आज 8वां दिन है। 8 दिन के अंदर कमर ठीक कर ली। भुजंगासन करता है, भुजंगासन कर। भुजंगासन ये मैंने इसको बोला है रोज 50 से 100 बार करना है। पैर पास मैंने कहा बेटा थोड़ा सा, यस ऐसे। अब कितना फर्स्ट क्लास हो गया। नहीं तो कमर दर्द कितना भयंकर था कमर दर्द तेरे को। झुका नहीं जाता था आगे, कोई काम नहीं, वजन नहीं उठाता था मैं, 20 किलो भी बिल्कुल भी नहीं उठाता था। तो कमर कबाड़ा हो चुकी थी, डिप्रेशन हो चुका था, पेट गड़बड़। करो अभी आज कितना कर चुके हो? 100 दंड लगा चुका हूँ। 100। अब दंड लगाता, दंड लगा, अब ये दंड लगाता है। अब बताओ ऐसे पूरा एक श्वास में एक लगाया कर ऐसे पूरा। अब ये पूरा रिदम के साथ करने लगा तो पूरा पहलवान बन जाएगा थोड़े दिनों में। अब ये तेरे को भी करना रहे। हाँ धीरज, हाँ तेरा तो पूरा पानी निकल गया। थोड़ी सी ताकत आती है ना, ये करते करते ही ताकत आएगी। चलो पवन मुक्तासन करो, सब लेट जाओ। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन। आसन करते करते ही करो। ये पेट का पूरा प्रोग्राम लाइव हम इसलिए करवाते हैं, करते करते लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। तेरा क्या ठीक हुआ भाई? स्वामी जी मेरे को कोलाइटिस था। पवन और मुक्तासन, ये कमर दर्द है तो आप थोड़ा ऐसे ही करो बिना सिर उठाए। हाँ। मेरे को कोलाइटिस वंशानुगत था। ओ जेनेटिक, जेनेटिकली। ये जेनेटिकली होते हैं सब बीमारियां, गैस का, मेरे माँ पिताजी दोनों को। फिस्टुला भी जेनेटिक होता है। और मैं इतना परेशान हो गया था कि मैंने सप्ताह में 5 दिन मेरा पेट खराब रहता था। और एलोपैथी की दवाई जो जैसे फिर कैसे ठीक किया? ये जैसे मैं 2009 में योग शिक्षक प्रशिक्षण के लिए आया था फेज 2 में। अच्छा, तो उस समय मैं योग शिक्षक की ट्रेनिंग लेकर पतंजलि योगपीठ फेज 2 में हमने योग टीचर्स ट्रेनिंग चलाई, उसमें बैतूल जिले से हूँ मैं, मध्य प्रदेश से। तो वो जिले वाइज बुलवाए थे आपने, तो मैं उसमें आया था। तो तेरा क्या हाल है? अब तो मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन अभी मेरे को समस्या वैक्सीनेशन के बाद हुई स्वामी जी। हाँ इसका भी complication। एसिडिटी और वही पुराना सारा सब। ये जो कोरोना में कार्यक्रम होता है वही वैक्सीनेशन के बाद भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। क्या करें आप? बहुत परेशान है स्वामी जी दुनिया। अगर आप नहीं होते तो मैं जैसा तो मर गया होता। मेरा 8 किलो वेट लॉस हुआ है। मेरी 5 फीट 6 इंच हाइट है और मेरा 72 से अभी 53 है, मैंने यहाँ नापा। चलो वो वापस उसके लिए कुछ रास्ता बताओ स्वामी जी। आज बता दिया, खजूर खाना, वेट गेन थोड़ा ले लेना। तेरे को क्या था बेटा? पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन करो। चलो करो, उत्तान पादासन करो। हाँ आईबीएस की समस्या है गुरुजी। IBS, हाँ। उम्र कितनी? 32। ये IBS, कोलाइटिस, कॉन्स्टिपेशन छोटे छोटे जवान बच्चों को भी हो रहा है। तो अभी कितना फायदा है बेटा? अभी काफ़ी आराम है, गैस एसिडिटी काफ़ी बनती थी सर्वकल्प रोज लेना और बेटा। अभी काफ़ी आराम। ये IBS कुछ नहीं है, ये आंतों की कमजोरी है। कमजोरी। अब नाम रख दिया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। मेरे को कुछ बड़ी सी बीमारी हो गई। सोच के ही लगता है कि लग रहा है कुछ बड़ा हो गया है। कुछ बड़ा हो गया, इतना बड़ा सा नाम धर देते हैं ये IBS। हाँ, और MBBS जब उसको बताता है IBS को, तो आदमी ऐसा डर जाता है कि मेरे को कुछ हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ, तेरा आंतें कमजोर हैं। एलोपैथिक में गुरुजी जब कुछ डायग्नोज नहीं कर पाते हैं और पेट नहीं, खराब नाम रहता है तो कर वो देते हैं। IBS रख देते हैं। क्या पढ़ाई की बेटा? बीटेक किया मैंने। ठीक है, तो अभी ये योग करके बेटा अब ये सर्वकल्प ले लेना बस। और लिवोग्रिट लिवामृत थोड़े दिन खा लो, उससे पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था स्वामी पिछले 3 महीने से। तेने क्या ठीक किया? मुझे भी एसिडिटी होती थी, उससे मुझे डिप्रेशन होता था। ये मैंने प्रशिक्षण लिया मेरे। अच्छा गुरुजी है, ठीक है, चरण छुआ करो। अरे सब जो है सब कहेंगे अपने, सब जितने भी धर्मोपदेश करने वाले बाबे, गुरु, सन्यासी, पति परमेश्वर होता है उसके पैर छुआ करो। अकेला स्वामी रामदेव है जो पतियों को कहता पत्नी के पैर छुआ करो। इतने जल्दी रजिस्ट्रेशन भी उसी ने करवाया, अभी आने के लिए मनाया भी कि चलो कैसे भी कोरोना कुछ भी। खैर ये तो हंसी मजाक की बात है, पैर पुर छो या ना छो, लेकिन एक दूसरे की बात मानो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सहायता करो। अब तेरी कैसे क्या हाल है? मेरी तो ठीक है। इनको भी मैंने योगा ज़्यादा से ज़्यादा कराया घर में, सुबह उसी शाम से सब। दोनों टाइम करवा रही है। फिर शाम को नहीं करते थे तो 1 घंटे कपाल भारती, मैंने कहा दूसरा मत करो, लेकिन कपाल भारती और नहीं, अनुलोम आसन विलोम अच्छे है ना, जरूर करिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, हलासन, सेतु बंधासन, जितना हो पाए। 5 बजते ही मैं ऑफिस में रहता हूँ, फोन कर देती कि आ जाओ। तेरा क्या ठीक किया? चलो कंधरासन को ले लेट के,
हाँ, बीच से कमर उठाने बिल्कुल ईजी है ना, सब बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं। करो चलो, आप तो ऐसे बताओ, आप करो बेटा पैर मोड़ के। स्वामी जी, मुझे 10 साल से Yes. एसिडिटी की कमर बहुत उठाओ। समस्या थी, तो देखो डॉक्टर्स ऐसे करो, ने जैसे वो रिवर्स कर रहे थे। पेरिस्टालसिस बताया। यस, हाँ, रिवर्स पेरिस्टालसिस एक बीमारी बता दी, जिसमें मतलब मुझे उल्टियाँ एक बार शुरू हो जाए ना तो वो पूरे दिन बंद ही नहीं होती थी। पेंटॉप DSR एक जो टैबलेट आती है, वो सारे लोगों को एसिडिटी में सूट कर जाती है। अगर किसी को हल्की सी एसिडिटी हो तो वो खा के ठीक हो जाते हैं, लेकिन मैंने अगर वो खा ली तो मेरा वो दवाई तक ऐसी की ऐसी ही निकलती थी। अब क्या हाल है? अब तो मैं बिल्कुल सही हूँ स्वामी जी। सभी मैंने अभी acidity भगा दी? बिल्कुल सब क्या- कुछ क्या सही किया? है। इंडिया टीवी पे प्रोग्राम देख के मैंने बराबर 1.5 साल से बराबर में योगा कराया मैंने, और अब मैं बिल्कुल सही हूँ। कपालभाति जो वो करती हूँ, मंडूक आसन, वो कपालभाति के साथ करती हूँ। हाँ, मंडूक आसन से लेकर के पवन मुक्त आसन और ये सेतुबंध आसन जो हो रहा है, सारे आसन कपालभाति के साथ कराते हैं। ठीक हो और ली? मुझे तो बिल्कुल मना कर दिया था डॉक्टर ने कि आप पता नहीं आपको कौन सी बीमारी है। एक तो डॉक्टर ने गैस्ट्रोएंट्रो को दिखाया, उन्होंने डायरी बनवा दी। 1 साल तक अब मैंने ये लिखा। ऐसे दवाइयों के नाम से डरा डरा के तुम तो बहुत अच्छा आसन कर रही हो बहन जी। हैं? क्या क्या ठीक कर दे? आपसे प्रेरणा लेकर योग की ट्रेनिंग की और अभी योग थोड़ा बहुत सिखाती है? सिखाती हूँ। क्या बात, क्या नाम बेटा? प्रीति। प्रीति। अब प्रीति की तो योग से प्रीति होगी है। स्वामी ठीक जी, है? मैं ना, मेरे को 2008 में कैंसर हो गया था। हाँ जी। और उसके बाद मेरी 4 सर्जरी हुई, कीमोथेरेपी हुई, लेकिन उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। 3 बार रिलैप्स हो गया। बड़ी हिम्मत वाली है, मरी नहीं तू। लोग डर के मर जाते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ न मरिष्यति माँ भी, डरो मत। इसने मुकाबला किया प्रीति ने। उसके वैसे ताली बाद- बता दे भाई इस बात के लिए। 3 बार रिकरेंस, 3 बार प्रोलैप्स हो गया। हाँ, उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो बार बार, फिर दोबारा से बोला सर्जरी होगी 5वीं बार। मैंने बोला अब मुझे सर्जरी नहीं करानी। फिर मैंने आपको देख के नेचुरोपैथी वगैरह फॉलो किया, रॉ डाइट किया, और योग और प्राणायाम से मैंने, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। अब 100% अब अभी बीमार नहीं होना तेरे को। हाँ जी। और योग मत छोड़ना है। तो मैं देख रहा था सर्वांगासन हलासन भी कर लो। ये तो सारे सेतुबंध आसन, सर्वांगासन, हलासन सब एकदम फिट फॉर करती है। कोई कह ही नहीं सकता इसको कैंसर हुआ था कभी। हैं, इतनी अच्छी लड़की होगी है तो प्रीति। तूने क्या ठीक किया भाई? बाबा जी, ठीक नहीं किया, अभी 3 दिन हुआ है। हाँ। पैर मेरा बिल्कुल टेढ़ा हो गया। टेढ़ा हो गया है। अरे हाँ, ये जो पैर होते हैं ना, ये विटामिन, देखो ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होते हैं ऐसे। अब ये जो डी की, एक तो विटामिन डी लेना तेरे को, धूप में बैठना है, तेरा इलाज है धूप में बैठ। तो डी की डेफिशिएंसी से टेढ़े होते हैं। विटामिन डी, B12, बी कॉम्प्लेक्स, तो धूप, मकई और मोरिंगा, सहजना, ये तेरी नेचुरल औषधियाँ। बाकी अभी तो तैयार भी दे देंगे। ये ठीक हो जाएगा। हाँ, सीधी हो जाएगी एकदम। कितनी उम्र है तेरी? 52। ये तो आजकल 30-35 साल के बच्चों को भी होने लगे ऐसे। हाँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। हाँ, महाराज जी, मेरा लीवर फैटी था और कब्ज था बहुत ज़्यादा, और रात में हम सो भी नहीं पाते थे। 3-4 दिन से यहाँ पे रात में बहुत अच्छी नींद आती है, और लीवर का दर्द जो हम मुड़ नहीं पाते थे यूँ, वो तक मतलब ये बिल्कुल फैटी ठीक लीवर हो तो गया। बहुत बड़ी समस्या हो रही है। बिल्कुल ठीक हो गया। इसको और 5 कब्ज मिनट की करना कोई बेटा है। समस्या नहीं रही। और हलासन भी कर, 1-2 मिनट हलासन। ये पेट को, IBS के दुश्मन है ये, छोटी छोटी चीजें हैं ये। हाँ, कब्ज पुनः नवाए तो 25 है। कब्ज के लिए हम 1-1 घंटा टॉयलेट में बैठे 1 घंटा टॉयलेट। दो अच्छा, लोग तीन कहेंगे बार। योग के लिए वक्त नहीं है, टॉयलेट में जो है जा करके समाधि लगाएंगे। 2-3 बार होता था। बिल्कुल अब सही। अब 3 दिन में ठीक हो लिया। आपको क्या था? बाबा जी, मुझे 9 दिन के हुए आज। 9 दिन में 3 मिरेकल किए मैंने यहाँ पे। क्या 3 मिरेकल हुए? नाम क्या आपका? राजेंद्र राजेंद्र जी। हाँ जी। मैं रिटायर्ड हुआ था पिछले ये सर्वांगासन हलासन आज योग करते करते ही सारे बातें पूछ रहे हैं। मैं रिटायर्ड हुआ था पिछले साल, तो मैं रिटायरमेंट के बाद वैसे आया था फ्रेश होने के लिए। हाँ, चलो नौकरी की थकान उतार लेते अब घर में पड़ा। अब मैं 3 महीने से डिप्रेस था बहुत बुरी तरीके से, और रात को 2 घंटा 3 घंटा नींद मुझको से आती थी। इतना ज़्यादा? इतना। और ये ऐसा जब मैं यहाँ आया था ऐसा लगता था ये तो दिमाग फट जाएगा। और डॉक्टर्स मैंने सीधे आ गया, मेरा ब्रेन में हेमरेज हो सकता है। तो उन्होंने मुझे सांत्वना दी, धीरे धीरे धैर्य बढ़ाया, ट्रीटमेंट चला। 3 दिन तक मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और जो भी इन्होंने काढ़ा वगैरह लिखे, ऐसे जाते थे तीर की तरह नीचे से उतरते हुए, जैसे कुछ काटते हुए जा रहे हैं।
पहले पित्तहर दिया था, पित्तहर वो सूट नहीं करा। फिर मैंने उनको डॉक्टर प्रकाश उनको बोला तो कहने लगे तुम पित्तहर छोड़ो, अब सौंफ लो। फिर सौंफ भी वो भी लगता था, लेकिन फिर भी मैं पीता रहा। अब वो 3 दिन से मैं सौंफ का पानी बराबर पी रहा हूँ। अब एसिडिटी नहीं है, मेरे गैस्ट्रिक नहीं है। और तीसरा मिरेकल ये मेरे सिर कहाँ फट रहा था वो? सिर ये फट रहा था, यहाँ पे है ना, ऐसा पानी सा बसता था। अब ठीक हो गया? अभी मेरी नाक में भारीपन है, आप महसूस कर रहे होंगे आप आवाज़ में। ये जो है ऐसा लगता था, ये अब सिरोधारा वगैरह हुई है तो इसमें बिल्कुल अब वो टेंशन नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल। अणु तेल भी डाल लेना। हाँ, अब 3 दिन पहले किया। हाँ, नशे के लिए कह रहे हैं, टाइम कम है अभी तो ऐसे अणु तेल ही डालो बस, कोई बात। तो मुझे यहाँ पे 6 को आया था, 8 तारीख को मुझे यहाँ पे फीवर हो गया था और नज़ला हो गया था। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप जो है फीवर एंटी कफ कोल्ड वो लें। 3 दिन मैंने 3 टाइम वो लिया और मेरा ना फीवर है और ना जुकाम बह रहा था, वो भी ख़त्म है। और ये इसमें घुटने में, राइट घुटने में चला नहीं जाता था बिल्कुल। यहाँ ट्रीटमेंट से, स्टीम वगैरह से। अब ये है, कल मैं योगा से आ रहा था, बारिश आ गई रास्ते में, मैं लगड़ा के ही चल रहा था और मुझे जब मैं भीगा, मैं एकदम ऐसा तेज भागा, मुझे खुद पता नहीं कि जो है ये घुटने में दर्द था। और अब मैं खूब तेज भाग चल रहा हूँ। और टेस्टिंग हो गई। हाँ। बारिश ने भगा दिया, पता लगा मेरे तो गोटे खराब थे, ठीक हो लिए। अब बिल्कुल घुटने में दर्द भी नहीं है, बिल्कुल फिट हूँ मैं इस समय। वास्तव में यह मिरेकल है, वास्तव में मिरेकल है। चमत्कार होता है। मैं तो आते से गेट हुआ जैसे ठीक हुआ था। अब ये बेचारा कहीं सिर फट रहा था, कहीं पेट फट रहा था, बुरी हालत थी, अब ठीक हो लिया। तेरा क्या था भाई? चलो कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, आसन हो गए, प्राणायाम करो। फैटी लीवर था 2010 में हमको। फैटी लीवर पास में रखो भाई। क्या नाम है? रोहित अग्रवाल। कपालभाति ये तो जरूरी है सब पेट के रोगों के लिए। 2010 में हमको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। अच्छा। और उस समय डॉक्टर ने ये कहा था, हमने काफ़ी योगा किया, उससे काफ़ी हमको आराम हुआ है। अब पेट में भी मतलब बीच में काफ़ी दिक्कत हो गई थी, लेकिन अब इधर 3-4 दिन से काफ़ी ठीक है। अब फैटी लीवर तो 1 सप्ताह में ठीक हो जाता है। और बस सर्वकल्प लेना। डॉक्टर का कहना था धीरे धीरे डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। ना अब डायबिटीज़ तो तुम्हारे पड़ोसियों को भी नहीं होगी। सर्वकल्प पी रहे हो? जी। और लिवोग्रिट लिवामृत ले लेना थोड़ा। ठीक। हाथ पक्के से कहाँ पर है? हाथ में यहाँ पे मतलब दिक्कत है, यहाँ पे। ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो कई बीमारियाँ आदमी को एक एक करके घेर लेती है। पहले पेट खराब हुआ, फिर बोले डायबिटीज़ होगी, फिर बोले तेरे को कम्पवात होगा, फिर ये होगा। तेरे को कुछ नहीं होगा, बस योगा होगा। योग होगा तो कुछ नहीं होगा। छोटी छोटी बातों से हम इतने परेशान रहते हैं कि अब क्या करें। अरे कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो। और योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से, अलग अलग थेरापियों से ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियों को हमें हराया है। આવી રીતે આ નાનકડી ક્રિયાઓ કરીને અને આહાર વિહારમાં, ખાનપાનમાં, ઋતુચર્યા, દિનચર્યા, આહારચર્યામાં, નિદ્રાચર્યામાં, આહાર નિદ્રા બ્રહ્મચર્યમ ત્રોપષ્ટંભ થોડુંક પરિવર્તન કરીને તમે મોટા રોગોને મટાડી શકો છો। અને આ બધા રોગો અમે મટાડ્યા છે અને એના જ લાઈવ એક્ઝામ્પલ સાથે આજે યોગ કરીને બતાવ્યું આપને કે તમે આવી રીતે યોગ કરશો તો સદાય નિરોગ રહેશો।